Hello everyone, today we're going to discuss previous year topic wise questions. So today's topic is alligation and mixture. And before we start, same thing, in the description of this video there is a link. Use that link to download this PPT. First try questions on your own and after that watch the solution at a speed of 1.5 or 2x speed. है ना, इंस्टेड ऑफ लाइक कि एक एक सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करके देन सॉल्यूशन, इट्स बेटर डू इट at once solve all this question, try all this question, then watch the recording. And also make sure that you watch the solution of each and every question. It doesn't matter you have solved it or not. अगर तुमसे सॉल्व हो गए ग्रेट, नहीं सॉल्व हुए तो सॉल्यूशन तो देखना ही है, बट जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं उनके भी सॉल्यूशंस देखना है, बिकॉज देयर माइट बी सम न्यू टेक्निक्स, यू सम शॉर्टकट है ना, some better approach for that particular questions, so that you will be able to learn. And it will help, suppose this question like as these are the previous year questions, so it might repeat in the next year. So let's get started. So before we start, let's see the trends, how many questions has been asked in the last 5 years. So 17, 18, 19, 20, 21. So one question, two question, total 3 questions. And this 2018 total 6 questions were there. So slot 2, especially slot 2, 4 questions were there. I have given this paper 2018 slot 4. There were the slot 2, there was the 4 questions from mixture and alligation, and there are 3 questions from ratio and proportion. So total you can say from this topic only, your alligation, mixture, ratio, proportion, 7 questions were there. If you put your average also there, I think average maybe 1 or 0, 1 or 0, I don't remember. So 8 to 9 questions were there just from average, alligation, mixture and ratio, proportion. These are the like overlapping concepts. So like it was so many questions there in 2018. Okay, 19 1 1, 20 1 1 0 1. So again in 2022 we can expect 1 or 2 question, not more than that. 1 or 2 question, not more than that. Okay, let's get started. So this is the first question, CAT 2017 slot 1. A class contains 20 boys and 30 girls. In the mid-semester examination, the average score of the girls was 5 higher than that of the boys. So 20 boys and 30 girls. Okay, and अगर like mid semester का score देखें तो average of the girls was 5 higher. So boys and girls average of the, है ना, so this is I am writing average. In the final exam, however, the average score of the girls dropped. So girls dropped by 3 से drop to 2, while the average score of entire class increases by 2. So entire class, we know this 20 30, so ratio basically, so 2 3, and this let's say overall average we can find. So A equals to 2x plus 3x plus 15 by 5. So this is the average, so that is कितना हो जाएगा 5x plus 15 by 5. So this is x plus 3, x plus 3. So this is x plus 3, and the number of boys and girls are remaining same. So again this will be 2:3. And what more thing, the entire class, okay sorry, this is x plus 3, this is x plus 3, and this is increased by 2. So this is 5, this is x plus 5, this is x plus 5. So if you see this is in 2:3 ratio. So this is x plus 2, and so this is decrease, basically boys will be increased, है ना, the average increase in the average score of the boys तुम्हें निकालना, this thing you need to find in the terms of x. So if you check it here, so this is 3, if this is 3, so this will be like 1.5, so this is 4.5. If this is 4.5, so value of this will be like boys ka average, let's say B will be like 4.5 equals to B minus this one. So this is B x plus 9.5. So x plus 9.5. So the average score of boys increases by 9.5. So this is the right answer. So like देखो average के question में last class में किए है ना, but here whatever questions of average I have told you that मैंने पूरा segregate करने की कोशिश की है कि average के question अलग और जहाँ पर भी mixture के concept हो वो अलग. तो यहाँ पर देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे एलिगेशन का अप्रोच करके सॉल्व होंगे, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा. एवरेज में हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें एलिगेशन यूज हुआ था, बट यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन का जस्ट एलिगेशन से ही सॉल्व होंगे, एवरेज का कोई रोल नहीं होगा. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो यूजिंग द एवरेज फॉर्मूला,
because I have told you both the things are same, average equation basically, not any formula. Okay. Bottle 1 contains a mixture of milk and water in the ratio. So bottle 1 milk and water. So this is the ratio. And bottle 2. So bottle 1, bottle 2, 9:4. In what ratio volume should bottle 1 and bottle 2 be combined? So this is the super easy question. So basically I hope everyone knows this thing. So this is like किसी भी एक को पकड़ लो, मिल्क या वाटर को, 7 9 and 9 13 milk है ना, and we need 3/4. We need 3/4. So now you need to find this ratio. So this is basically which is greater here, which is greater. So देखो ऊपर 2 का इंक्रीज हुआ है, नीचे 4 का इंक्रीज हुआ है. So this is definitely greater. This is greater ना. ओके 7/9. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस ही निकालना है हमें, वी डोंट नीड साइन, तो कुछ भी कर दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. 3/4 minus 9/13. So if you check this thing, 13 4 is 52 and 13 is 39, 39 36, that is 3, 36, that is 28 minus 27 1. So this is कितना होता है 352 136. So this is the ratio. A bottle 1 और bottle 2 का रेशियो पूछा ना. So 36 and what we can cancel here, 9 4 is 36 and 4 से हो जाएगा ना 52 आएगा तो 26 13. So 27:13 is the answer. This was super easy question. Consider 3 mixture first having water and liquid A in the ratio 1:2. Water and liquid A. So water and A in the ratio 1:2. The second having water and liquid B 1:3. The third having water and liquid C 1:4. These 3 mixtures of ABC respectively are further mixed in the proportion 4:3:2. So 4:3:2. So let's say ये देखो 1:2 है, इसको देखो ये जब भी क्वेश्चन मैं ऐसे मिक्स करता हूँ तो व्हाट आई विल डू 3, देखो इसका सम 3 है, इसका सम 4 है, इसका सम 5 है. तो इसका एलसीएम ले लो, लेट्स दैट इज आई थिंक 60. तो सबको 60 बना दो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 20 एंड 40. इसको 15 से, इसको 20 से, इसको 15 से, इसको 12 से, 60 बना रहे सभी को. तो इसको कर दिया 15 से ना, 15 45 12 एंड 48 ऐसे कर दिया. नाउ अब जो रेशियो में बोल रहे हैं उसको उस रेशियो में कर दो 4:3:2. इसको 4 से इंटू कर दो, 4 कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 80 एंड 160 एंड इसको 3 से कर दो एंड इसको 2 से कर दो 24 96. So now this is the like original volume. This you can, these are the like not in the ratio, these are in the original volumes. So now you can compare. So what it is asking, the same amount of water and liquid B. अच्छा रिजल्टिंग मिक्सचर, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में देखो क्या होगा, वाटर होगा तुम्हारा 125 149 आई थिंक 149 राइट, एंड ए इतना होगा, बी इतना होगा और सी इतना होगा. WABC ये फाइनल मिक्सचर का कंपोजिशन होगा. सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड बी, नो. सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी एंड सी, नो. मोर वाटर देन लिक्विड बी, मोर वाटर देन लिक्विड बी, राइट. मोर वाटर देन लिक्विड ए, मोर वाटर देन, नो. So third option is the right answer. This was also easy, just you need to know how to like mix ratios. जैसे like ये चीज़ जरूर सीख लेना, अगर 2 डिफरेंट मिक्सचर्स दिए हुए हैं उनको किसी डिफरेंट कंपोजिशन में कैसे मिक्सअप करोगे. सो दिस इज द वे, फर्स्ट इनको ऐड करके ये निकाल लो, फिर तीनों का सेम बना लो, है ना, तीनों का वेट सेम कर लो, फिर उसको जिस रेशियो में दिया हो उससे उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दैट कंपोजिशन. सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट नो. ओके. A trader sold 10 liters of mixture of paint A and B
where the amount of B in the mixture does not exceed that of A. So 10 liters of mixture A and B, and quantity की अगर बात करें तो B is always, amount of B does not exceed A. So B is always equal to or less than A, है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता. The cost of paint A per liter is 8 more. So cost की अगर बात करें तो आप पेंट A, आई थिंक दिस इज राइट, है ना, A की 8 मोर है. अच्छा, जब कभी तुम्हारे पास ऐसे सिचुएशन हो, ऐसा सिचुएशन जैसे लास्ट, अगर तुम्हें याद हो, अपने एवरेज एक एटमोस्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, तो ये जस्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए, है ना, तो देखो इसकी इधर की लिमिट तो हम नहीं निकाल सकते कि बी कितना बड़ा होगा या फिर ए कितना छोटा होगा, है ना, दैट इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिट. बट ये एक है जहां पर स्टेबल है, जहां पर हमें वैल्यूज होती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99% केसेस में जो तुम्हारा आंसर आएगा वो इसी सिचुएशन पे आएगा, इसी पॉसिबिलिटी, इसी कंडीशन पे आएगा, वेयर ए इक्वल टू बी. ओके, बिकॉज एक्सट्रीम्स वी डोंट नो, लाइक एक्सट्रीम में बी कितना बड़ा होगा, ये कितना छोटा होगा, ये हमें कोई आइडिया नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर तुम्हें कंफ्यूजन है एग्जाम में, तो यू कैन टेक दिस रिस्क कि ये सब भूल जाओ, कि लाइक डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे एटमोस्ट में था, है ना, फालतू का वो चीज मेंशन हुई थी. डोंट गेट कंफ्यूज कि लाइक कितना क्या लिमिट होगा, जस्ट सॉल्व फॉर दिस, यू विल इजीली गेट द आंसर. लेट्स चेक इट हियर फर्स्ट. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले कई बार किया है, तो मुझे याद है ये इक्वल टू बी पे ही सॉल्यूशन आ जाता है. ठीक है, तो लाइक मोर देन दैट ऑफ बी, इफ ट्रेडर सेल्स द इंटायर मिक्सचर फॉर 264, सो 264 पे सेल करने पर 10% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 240, और 10 लीटर्स हैं तो 1 लीटर का कितना होगा 24, है ना, तो दिस इज 24. इतनी कॉस्ट, इतना कॉस्ट मिक्स करके इतना कॉस्ट आ रहा है. नाउ देन द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, ये क्वांटिटी की बात थी कि लाइक ये क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी का यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, क्वांटिटी यहाँ पर ऐसी आनी चाहिए. तो लाइक अगर हम इसको ए इक्वल्स टू बी कर दे, 1:1 करके सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो लेट्स ट्राई डेट. एंड ऑन अदर थिंग ऑल्सो, हम इनसे ट्राई कर लें, ऑप्शन से ट्राई कर लें. ठीक है, ये तो सब लोग लिख लोगे. ठीक है, चलो ये चीज़ नहीं समझ में आती है, अगर 1:1 लेना है या क्या लेना है, इफ यू डोंट नो तो कोई बात नहीं है, जस्ट ऑप्शन से कर लो. चलो 1:1 से वैसे भी आंसर चेक कर लेते हैं, फिर ऑप्शन से भी मैं चेक करा देता हूँ. 1:1 अगर करोगे तो 24 इक्वल्स टू x प्लस 2x प्लस 8/2, दिस इज 24 x प्लस 4 x इक्वल टू 20 आंसर आ जाएगा. 20 इज द ऑप्शन, राइट. अब देखते हैं, अगर हमें ये नहीं पता, सपोज यू गेट कंफ्यूज, इसीलिए देखो ऑप्शन देखना जरूरी होता है ना. तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही क्या लेना है, सो यू एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सभी बना लोगे, है ना. नाउ अब क्या करना, जस्ट ऑप्शन से ट्राई करूँ. अगर इसकी कॉस्ट 20 है और इसकी कॉस्ट 28 है, तो डेट इज 4 एंड 4 1:1, इसमें से लेस देन इक्वल टू बी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. एज लेस देन इक्वल टू बी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना. तो एक मिनट, मैंने उल्टा लिखा है क्या है, वेयर द अमाउंट ऑफ इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ बी. अच्छा, ये सिंबल मैंने उल्टा बनाया, चलो कोई नहीं, वैसे उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मैंने ये उल्टा बनाया. ये बोल क्या रहा है कि अमाउंट ऑफ बी ये होगा, है ना, ए हमेशा ज़्यादा या इक्वल टू रहेगा. ठीक है, ए ज़्यादा रहेगा, बी डज नॉट एक्सीड. ठीक है, दिस इज फाइन. नाउ अच्छा, अब ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन से 4:1 ए इक्वल टू बी, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. 16 को चेक करो जरा, ये 16 है और 16 24 है. अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है 24 और 16 को मिक्स करके 20 मिले, जब तक ये जीरो ना हो, है ना, ये वाला जीरो होगा तभी पॉसिबल है. तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल. 22 और 30 ये पॉसिबल है, तो लेट्स से ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 30 ना, तो ये 6 आ जाएगा. सो 1:3. अब यहाँ पर देखो बी बड़ा हो जाएगा, डी इज इन लाइक हाइयर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट राइट. 26 प्लस 34, सो इन दोनों को मिक्स करके 24 मिलेगा ही नहीं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो 20 आंसर आ जाता, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती. अदरवाइज तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि ये जो मैक्सिमाइजेशन या फिर जो भी है पॉसिबिलिटी है, वो इक्वल टू बी पर वैल्यूड होगी. अदरवाइज कोई नहीं, जस्ट यूज द ऑप्शंस, यू विल बी एबल टू solve this question. Let's see the next one. So I think option has made this question simpler.
ऑप्शन ने इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दिया. जो लोग यहाँ पर स्टक हो जाएंगे दे कैन यूज द ऑप्शन एंड कैन फिगर आउट द सॉल्यूशन. Let's see the next one. Cat 2018 slot 1. A wholesaler bought walnuts and peanut. Walnut and peanut. The price of walnut per kg being thrice. इसका thrice है. He then sold 8 kg of peanut at profit of 10%. 8 kg of peanut, 8 kg of peanut, तो x ये प्राइस है. अगर इसको 10% प्राइस तो लाइक 8 kg इतना प्राइस आ जाएगा. इतने पे सेल करोगे. 16 kg at 20% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस है 20% प्रॉफिट 1.2 इंटू 3 दैट इज 3.6 है ना, ये आ जाएगा. तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा. हाउएवर द शॉपकीपर लॉस्ट, अच्छा टू अ शॉपकीपर, ये होल सेलर ने शॉपकीपर को सेल कर दिया है तो ये शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस पड़ेगा. दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर. शॉपकीपर अब क्या करता है, लॉस्ट 5 kg. शॉपकीपर को 5 kg का वॉलनट नुकसान हो गया 11 kg एंड 3 kg पीनट का लॉस हो गया ट्रांजेक्शन में, तो लाइक दैट इज 5. ही देन सोल्ड, ही देन मिक्स द रिमेनिंग. अब अच्छा इसको मिक्स कर दिया तो टोटल 16 kg उसके पास बचता है. he then mixed the remaining nuts and the mixture at 166. अब उसने 166 पर सेल कर दिया तो इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये उसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस. थस मेकिंग ओवरऑल प्रॉफिट 25%. तो अगर इसका हम ये कॉस्ट प्राइस आया था ना शॉपकीपर का, जो होल सेलर का सेलिंग प्राइस था वो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस था. नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड ही इज मेकिंग 25% प्रॉफिट. सो फॉर 25% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस विल बी 4/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस है ना. कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना 5/4 होगा, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस. सो जस्ट राइट इट. तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी. नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन एंड आई थिंक वी विल गेट द आंसर. सो पहले तो 8 कैंसिल हो जाएगा तो 7.2x प्लस 1.1x सही है ना. 30 या राइट 2 8 इंटू 166/5. तो 5 को इधर कर देते हैं. 5 7 36 हो जाएगा. 5.5 हो जाएगा. ओके नो, x इक्वल्स टू 8 इंटू 166 अपॉन 36 41.5. नाउ आई डेफिनेटली विल यूज कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन. एग्जाम में तो मैं अब यहाँ पर तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट इन एग्जाम आई गोना डेफिनेटली यूज कैलकुलेटर. 0 एंड 8 से तो ये होगा नहीं, इसी से करना पड़ेगा. अच्छा आंसर सारे इंटीजर हैं तो इंटीजर वैल्यू आएगा. तो आई थिंक बिना कैलकुलेटर भी किया सकता है. तो दिस इज 415, तो 400 होता है 1600 या दिस इज 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स. 400 हो जाएगा तुम्हारा 1600 और 15 4 जा 60 तो 60. तो x की वैल्यू आ गई 32. x की तो कैलकुलेटर आई थिंक डोंट रिक्वायर्ड, अगर लाइक है ना, अगर ये चीज़ तुम ऑब्जर्व कर लोगे. सो व्हाट इज आस्किंग at what price wholesaler buy the walnuts. We need to find the cost price of walnut for wholesaler. So x that we have taken cost price, that is 32 into 3, that is 96 is the answer. So this was like I think question तो concept wise not difficult but बहुत सारा calculation, बहुत सारा like you can say steps थे है ना, बहुत सारी like process थे कि like उसने उसको फिर उसने उसको एंड वहाँ पर भी 2 चीज़ें थी फिर उनका प्राइस. दीज आर द थिंग टू डील. अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज आई डोंट थिंक दिस वाज डिफिकल्ट. स्लॉट 2 ओके, इसमें बहुत सारे मिक्सचर एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज के क्वेश्चन थे स्लॉट में. दिस वाज माय स्लॉट, इस स्लॉट में मैंने एग्जाम दिया था. लेट्स चेक इट. देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट A and B in drum 1. So drum 1 A and B 18:7. The mixture from drum 1 and drum 2 are mixed. Okay, so drum 1 and drum 2 this is 3 4 and the final mixture 13:7. Okay, so this is I think easy question. So ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है.
एलिगेशन से। अगेन ऐसा पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं ना, पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ यू सी दीज आर द सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, विच वन? रिपीट, ये देखो ये भी वैसे वैसा ही है ना, लाइक एलिगेशन लग रहा है, वो निकालना एक पार्ट। दिस वॉज, ये सेम क्वेश्चन है, 17 स्लॉट 2 एंड 18 स्लॉट 2, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा सेम थिंग। अब देखो कितना मिक्स करोगे, ड्रम 1 और ड्रम 2 को मिक्स करके फाइनल कितना मिल रहा है तुम्हें, ए और बी 13:20। यहाँ पर ड्रम 1 का तुम्हें पता है डेट इज 18/25, ये तुम्हें निकालना है, और यू नो दिस रेशियो 3:4, है ना। इज इट सेम? सेम है दोनों क्वेश्चन। देखो कौन सा, 17 स्लॉट 2, 17 स्लॉट 2, दिस वन। यहाँ पर तुम्हें ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये निकालना था, और यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ निकालनी है, तो सेम ही क्वेश्चन है ना। ऐसा 17 स्लॉट 1 का भी क्वेश्चन है। तो देखो बार बार क्वेश्चन वही रिपीट करें, जस्ट दैट्स व्हाई, लाइक इसीलिए मैं तुम्हें ये सेशंस दे रहा हूँ, आई एम मेकिंग दीज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और अभी मैं अल्टरनेटिव पे कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू डू कि ये डेली बेसिस पे तुम्हें मिल जाए, ताकि जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक कवर हो जाएं। बिलीव मी, अगर तुम ये चीज़ कर लोगे, इफ यू डू दिस थिंग, एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन तुम्हारे इंक्रीज कर जाएंगे, जो लाइक अगर तुम अच्छा कर रहे हो एग्जाम में डेफिनेटली तो बहुत कम इंक्रीज होगा। अगर तुम अभी अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर तुमने सिलेबस कवर किया है एंड जस्ट स्टार्ट गिविंग मॉक्स और बहुत कम स्कोर आ रहा है, डेफिनेटली 5-6 सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, और अगर अच्छे से कर लोगे यू विल डेफिनेटली हैव एज। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज एक तो कर सकते हैं 100 से करके, से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लाइक देखो कैसे कर सकते हैं, बट छोड़ो वैसे क्यों ही करना, सिंपल ही कर लो, सिंपल ही कर लेते हैं। सो 3:4, तो देखो 13/20 इक्वल्स टू, दिस इज 1825 into 3 प्लस 4x एंड डिवाइडेड बाई 7, तो 7 को इधर कर देते हैं, दैट इज 91/20, 54/25, 4x। तो इधर मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसका। So this is 91, so LCM 100 and 91 5 minus 54 into 4, and this is 4 by x. So this is 5 and 455 and 216. I hope I am right. This is 400. So यही हमें निकालना था। So 45 to 16, 15 6 9, 3 आ रहा है ना ऑप्शन, हाँ। एंड यहाँ तो लिया 2 2 3 400 में देखो क्या है तुम्हारा, तो अब आंसर तो आई थिंक यही हो जाएगा, बट देख लेते हैं एक बार। अब ये नीचे a प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो 400 माइनस कितना करोगे, 400 माइनस 239, दैट इज आई थिंक 161 ही है, 1 आ जाएगा, एंड 936 321, सो दिस इज 231 is to 161, this is the right answer. A 20% ethanol solution is mixed with another solution. I think ये मैंने एग्जाम में किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। Ethanol solution, say S of unknown concentration, the proportion 1:3. This mixture is then mixed with an equal volume of 20% ethanol solution. If the resultant mixture is this much ethanol solution, okay. I think ये भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में सॉल्व कर लिया था। 20% ethanol solution is mixed with another ethanol solution, say S of unknown concentration by volume in the proportion. So like अभी इथेनॉल का सॉल्यूशन है 20% का, है ना। अब इसके कोई एक अदर सॉल्यूशन है X, वो ऐड किया गया है 1:3 के प्रोपोर्शन में, तो ये लाइक अगर ये X है तो ये 3x है। दिस मिक्सचर, अब ये जो मिक्सचर बनता है लाइक 4x का, दिस मिक्सचर इज देन मिक्स्ड देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। तो देखो ये 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, ये चीज़ अगर एग्जाम में जिसने फिगर आउट कर ली होगी, आई वॉज टू ग्लैड, लाइक टू हैप्पी, जब मैं ये चीज़ एग्जाम में फिगर आउट कर पाया था और मैंने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये चीज़ अगर तुम फिगर आउट कर पाओगे देन दैट्स ग्रेट, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉर्मली सॉल्व करते हो। देखो मैं क्या करूँगा, तो इसने ये सेम सॉल्यूशन फिर से मिक्स किया है, जितना है सॉल्यूशन। अब देखो 4x सॉल्यूशन है, तो 4x का अगेन इथेनॉल 20% मिक्स करेगा,
तो अब देखो फाइनली हो क्या रहा है, अगर ओवरऑल पिक्चर देखो तो ये 5x है और x वाला 3x है, 5x और 3x, इस दो रेशियो में तुम्हारे एक इथेनॉल 20% और एक तुम्हारा x कंसंट्रेशन का मिक्स हो रहा है। तो अब देखो ये निकल आएगा, लेट्स सी, लेट और ये भी दिया हुआ है तुम्हें, फाइनल ये दिया हुआ है। तो चेक क्वेश्चन लाइक ओवरऑल क्वेश्चन को चेक करो, अगर तुम एक एक स्टेप पे सॉल्व करो, स्टेप वाइज सॉल्व करो, देन दैट इज अ डिफिकल्ट टू डू। मैंने क्या चीज देखी, लाइक मैंने ऐसे लिखा था, देन आई स्टार्ट सॉल्विंग, देन मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये 20% इथेनॉल सॉल्यूशन है, ये 20%, ये दोनों तो सेम है, मतलब उसी को फिर से मिक्स कर रहे हैं। सो आई राइट इन दिस रेशियो, और फिर मैंने देखा कि फाइनली इथेनॉल वाले का इतना रेशियो है, फाइनल मिक्सचर में देखो क्या होगा, इथेनॉल वाला इतना होगा 20% वाला, और अननोन कंसंट्रेशन वाला इतना होगा। This will the ratio. You know this, you know this, you need to find this. Again easy one. Just you need to figure out this thing. अगर ये figure out नहीं करोगे, एक एक स्टेप पे करोगे, तो that will take a bit time. थोड़ा सा टाइम, वो 3 मिनट तक जा सकता है, and using this you can solve within 1.5 minute. ओके, तो डबल टाइम लग जाएगा लगभग। सो 20% और x निकालना है हमें, ये कितना दिया 31.25 रिजल्टेंट मिक्सचर का, और ये x निकालना है हमें, और ये 5:3 है। सो 5:2, तो इसको निकालना है, ये कितना आ जाएगा 11.25, 11.25, सो 3, सही है ना 11, हाँ 339, 34 एंड क्या, चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, लाइक ऐसे भी हो, लाइक देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे भी ट्राई करता हूँ, और जब मुझे नहीं समझ में आता मैं ऐसे भी करता हूँ। तो अब तुम्हें एग्जाम में लाइक ये 2-3 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना होगा, ऐसे करना है या फिर ऐसे करना है ना। अगर ऐसे देखो इंटीजर वैल्यू आ जाती तो मैं कर लेता, अब देखो ये इंटीजर इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, कि मैं गलत कर रहा हूँ, डिवाइड नहीं हो रहा था, होना तो चाहिए 9 है, होना चाहिए 339, अच्छा 2 बचेगा, तो 3 7 जो 21, 3 5 जो 15, हाँ होना चाहिए 3.75 इंटू 5, 3.75 इंटू 5, 5 5 जो 25, 5 7 जो 20, 5 7 35, 7 3 15, 18.75, सो यहाँ पर आएगा 18.75, अप्रोक्सीमेटली नहीं पूछा है, एग्जैक्ट पूछा तो 25 आना चाहिए था। 5 5 जो 25, 5 7 35 टू 7, ठीक है ओके। तो ये कितना तुम्हारा आएगा, चलो ऐसे कर ले, मे भी कुछ मैं कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ कर रहा हूँ। अब ये ऐसे करते अगर तो लाइक 20 इंटू 5 डेट इज 100 एंड दिस इज 3x अपॉन 8 आ जाएगा, तो 8 को इधर कर दूँ, तो 25 8 होता है 200, 200, 8 1 8 डेट इज 10, 8 3 24, 25, तो 250, 250 और इधर आएगा 250 और 100 डेट इज 150 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 50 आ जाएगा, x इक्वल टू 50 इज द राइट आंसर। अच्छा ऐसे क्यों नहीं आ रहा है, सही लिखा है ना मैंने, 11, ये क्या था 11.25, 11.25 कहाँ से आया, अच्छा यहाँ से आया था, ओके यही गलत है ना, 31 2.5 से subtract करो, नहीं सही है, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, राइट। तो 3.75 से इधर अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37 पर देखो 15.75, मैं देखो यहाँ पर 25 आएगा तभी तो लाइक इंटीजर आंसर आएगा ना, अदरवाइज इंटीजर नहीं आएगा। तो सो व्हाट आई एम डूइंग, 5 3 सही है ना, 5 3, ओके माइट बी आई एम डूइंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये तुम लोग चेक कर लेना ठीक है, ऐसे भी आना चाहिए आंसर, लाइक ये रेशियो पता है ना, लाइक ये वैल्यू निकल आएगा है ना, तो ये वैल्यू निकल आएगा, जब ये वैल्यू निकल आएगा तो ये वाला वैल्यू निकल आएगा, तो जस्ट चेक करना कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सही तो आ रहा है यार, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, नॉट एन इशू। देखो अगर मैं क्या करूँ, हाँ ठीक आ रहा है, 31 2.5 18.75 दैट इज 100 दैट इज 50, राइट सही आ रहा है 50, तो 50 आ जाएगा। तो देखो मैं ऐसे भी सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसे भी सॉल्व करता हूँ, डिपेंडिंग उस टाइम पे मुझे क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है, एंड वो डिसीजन विद इन 1 or 2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। सॉल्व तो मैंने कब का कर लिया है ना, मैंने ऐसे ट्राई किया, मुझे कुछ और लगा, मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, सो दैट डिपेंड कि तुम कैसे करना चाहते हो एग्जाम में।
A jar contains a mixture of 175 ml water and 700 ml alcohol. तो वाटर एंड अल्कोहल, आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कि लाइक इसमें क्या था, ये चीज़ प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट था, ओवरऑल सिनेरियो को प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट था। आई होप ये सबने अगर ये फिगर आउट कर लोगे क्वेश्चन बहुत आसान है। अदरवाइज तुम इसके कहीं भी जाके सॉल्यूशन देखोगे जाके हर जगह 2 स्टेप पे सॉल्व है। ओके, सो अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वन वाटर एंड 175 and 700 ml alcohol. गोपाल टेक्स आउट 10% ऑफ द मिक्सचर एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। तो ये तुम्हारा जो है मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है ना उससे है ये। तो अब देखो वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर से रिप्लेस करें तो यहाँ पर अल्कोहल का सब कुछ आएगा। तो इनिशियली अल्कोहल कितना था, 875 इतना था। जस्ट मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, नथिंग एल्स। और कितना 10%, तो 10% के लिए 9/10 होता है। और ये प्रोसेस 2 बार हुआ है, फाइन। और यहाँ पर आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, अल्कोहल का परसेंटेज मिलेगा, अल्कोहल अपॉन अल्कोहल प्लस वाटर, ये तुम्हें बेसिकली मिलेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज 10 तो पहले ये कैंसिल कर दो, 7 से कैंसिल होगा क्या, 7 1 से 7 14 हो जाएगा, 7 1 7 7 to 14 7 5 जो, ठीक है। सो दिस इज 81:125। सो हमें वाटर का परसेंटेज निकालना है। सो 125 81, दैट इज 4, दैट इज 4 44 अपॉन 125 into 100. So this is 5 and 25 4 4 4 16 176, 5 3s are 15, 3s are 15 and 5 5s are 25 and 25 1 5 2s are okay 35.2। मैंने सोचा ये 25 लिखा है, 35.2 इज द राइट। ठीक है, दिस वाज आल्सो इजी। ये तीनों क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। आई थिंक एक कोई क्वेश्चन था दैट वाज, आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था मुझसे एग्जाम में, इन द एग्जाम आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व। ये तीन हो गए थे। आई थिंक ये आसान क्वेश्चन था और ये आसान क्वेश्चन था, ये दोनों आसान क्वेश्चन थे। दिस वाज, ये थोड़ा डिफिकल्ट था लाइक एज कम्पेयर टू अदर। अदरवाइज ओवरऑल देखो तो लाइक इट्स नॉट एज डिफिकल्ट, बट इसमें ये चीज़ फिगर आउट अगर नहीं करोगे तो टाइम टेकिंग और स्टेप प्रोसेस पे कहीं पर गलती हो सकती है। सो आई थिंक 2 वर इजी एंड 2 वर मीडियम डिफिकल्ट। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, 2 इजी थे, एक मीडियम था और ये आई थिंक डिफिकल्ट है। इसको चलो देखते हैं। ये उस टाइम पे मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट, बाद में लाइक बाद में चेक किया था, बाद में तो हो गया था बट अभी मुझे याद नहीं क्या प्रोसेस था। लेट्स चेक इट है, अब करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इज P%। तो ये बस स्ट्रेंथ का दिया हुआ कि स्ट्रेंथ क्या होती है, डेफिनेशन है। सॉल्यूशन ABC आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन, तो ABC, लेट्स से इनका कंसंट्रेशन है A B और C। तो इनको अगर इस रेशियो में मिक्स करोगे तो कंसंट्रेशन फाइनल तुम्हें क्या मिलेगा, 20%। सो दिस इज द इक्वेशन। सो इसको 1.2 लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट। 6 12 1.2 1.2। ऐसे दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 3A प्लस 2B प्लस C इक्वल्स टू कितना है, अपॉन 6 आएगा अगेन। 30% तो 0.3 आएगा, 0.3 इंटू 6 दैट इज 1.8। ये दो इक्वेशन बन गई। अ फोर्थ सॉल्यूशन D इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग B एंड C। तो D का स्ट्रेंथ D ले लेते हैं एंड इसको इस रेशियो में, तो इसका स्ट्रेंथ क्या आएगा, D इक्वल्स टू 2B प्लस 7C अपॉन 9। ये आ गया। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ D टू दैट ऑफ A। तो बेसिकली तुम्हें D टू A निकालना है, यू नीड टू फाइंड D टू A। 3 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स हैं, बट तुम्हें रेशियो निकालना है ना, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, तो दैट कैन बी फिगर आउट। तो क्या करें, अगर मैं B को A के फॉर्म में और C को A के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व। तो ये चीज़ मुझसे एग्जाम में नहीं हो पा रही थी, एग्जाम में दैट वाज टेकिंग टू मच टाइम, सो आई हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। ये मैंने छोड़ दिया था। आई हैव ट्राइड बट ये कुछ कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिल रहा था, देन आई हैव लेफ्ट इट। ओके, लेट्स सी इट हियर। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, B कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे इसको करें, है ना, इससे इसको करें, बेटर रहेगा। 2A एंड माइनस 2C
एंड 0.6, तो बेसिकली a माइनस सी इक्वल्स टू 0.6। तो a तो c के फॉर्म में आ गया, मतलब c को हमने a के फॉर्म में निकाला, डेट इज a माइनस 0.6, ये पहला आ गया। अब हमें b को a के फॉर्म में निकालना है ना। तो लाइक c की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ 3a प्लस 2b, c की वैल्यू है a माइनस 0.6 1.8, so this is 4a plus 2b 2.4, so 2a plus b 1.2, b equals to 1.2। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, c को आई वुड पुट a माइनस 0.6, ठीक है, 2.4, ठीक है, 4 2, ठीक है, b इक्वल्स टू, अच्छा 2, ठीक है, चलो कोई नहीं, 1.2 माइनस 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें तो d a के फॉर्म में आ जाएगा और रेशियो निकल आएगा, तो d इक्वल्स टू 2b बेसिकली 2.4 माइनस 4a माइनस 4a, c आएगा तुम्हारा 7c, c है 7a एंड माइनस 4.2, सही है, माइनस 4.2 अपॉन ये 9 है, सो दिस इज 3a माइनस 1.8 ओके, बट ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये फिर 9 कैंसिल ही नहीं होगा, a के फॉर्म में रह जाएगा, ये जो इंटीजर पार्ट यहाँ पर कैंसिल, तो अगेन मैं फिर से स्टक हो गया इसमें, लेट मी जस्ट चेक कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। ये ठीक किया था मैंने, ये कैलकुलेशन सही है, दैट इज 0.6 एंड a माइनस, ओके दिस इज मिस्टेक। देखो लास्ट अगर क्लास याद हो, लास्ट सेशन में मैंने ऐसी मिस्टेक की थी, मैंने 7 मल्टीप्लाई नहीं किया था एंड यहाँ पर ऑल्सो सेम मिस्टेक मल्टीप्लिकेशन। सो मेक श्योर अगर तुम्हें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक दिखता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पिन दैट कमेंट और मैं उसका सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज 0.3, दिस इज 0.3, तो हमने कहाँ मिस्टेक की है, दिस इज 0.3, तो हमने यहाँ पर भी मिस्टेक की है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गया इसमें, यहाँ पर मिस्टेक किया ना, इसको पूरा कैलकुलेशन हटाते हैं। अब देखो यही होता है जब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट वाइज इजी हो, वहां पर चांसेस रहते हैं गलतियां होने के, है ना, कहीं पर भी तुमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। दिस इज 0.3, सो दिस इज 2.1, तो ये 2.1 आएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा, दिस विल नॉट कैंसिल, है ना, अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो बेसिकली अगेन आई नीड टू मल्टीप्लाई, so this step I also need to remove, okay, this is just a minute, so this is 2b equals to 2.1 माइनस 4 है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये b आ गया a के फॉर्म में और ये c आ गया, इन दोनों का यूज करके वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो d को निकालते हैं, d इक्वल्स टू 2b की वैल्यू है 2.1 माइनस 4a और इसमें क्या है प्लस 7a, यहाँ से c की वैल्यू मैं रख रहा हूँ माइनस 2.1, हाँ अब देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, मे भी एग्जाम में भी मैंने कुछ ऐसी ही गलती कर दी होगी, मैंने इसमें लाइक 2-3 मिनट वेस्ट किए होंगे, आफ्टर दैट आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, मुझे रियलाइज हो गया कि अब नहीं होगा ये, 7 एंड दिस इज 9, सो d इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 3a अपॉन 9, सो d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमें निकालना है d अपॉन a, दैट इज 3a अपॉन 9a, so this is 1:3, so d is to a 1:3 is the right answer।
सो ये कैलकुलेशन में एग्जाम में मुझे प्रॉब्लम हो गया था। आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि कहाँ से कहाँ पर मैंने गलती कर दी, एंड आई डोंट वांट टू डू लाइक मैं पूरा प्रोसेस फिर से नहीं करना चाहता था एग्जाम में। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So like out of 4 questions in 18 slot, I find 2 on easy side, 1 on medium side, and 1 on difficult side. This many of you might not find this difficult maybe, but I find it difficult to handle this in the exam. A chemist mixes 2 liquids 1 and 2. 1 liter of liquid 1 weighs 1 kg and 1 liter of liquid 2 weighs, okay, liquid 1 का 1 liter इक्वल टू 1 kg है, लिक्विड 2 का 1 liter इक्वल टू 800 ग्राम है, ठीक है। इफ हाफ ऑफ द मिक्सचर वेज 480 ग्राम, इफ हाफ ऑफ द मिक्सचर वेज 480 ग्राम, हाफ ऑफ द मिक्सचर तो मतलब क्या होगा कि लाइक उसमें 500 ग्राम होगा और ये 400 ग्राम होगा, इनको मिक्स किया गया है, 500 400 को मिक्स करके 480 बनाया गया। इन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड वन इन द मिक्सचर इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। हो गया, ये क्वेश्चन तो आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 20 और 80 एंड दिस इज 4:1। तो पूछा गया लिक्विड 1 का परसेंटेज, तो 4:5 दैट इज 80% इज द राइट। इजी वन। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट, तो ये तुम्हें डेफिनेशन दिया हुआ है ना कि क्या होता है, देखो यहाँ पर भी ये डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अब अगर तुम्हें पहले से लाइक 18 में तुमने ये क्वेश्चन अगर सॉल्व किया होता तो तुम्हें थोड़ा सा ये आइडिया रहता है, इसमें टाइम वेस्ट ना करते एटलीस्ट ये समझने में। जैसे मुझे क्यों पता है, मुझे क्यों नहीं पढ़ना पड़ रहा, क्योंकि आई हैव सॉल्व दिस मैनी टाइम, तो मुझे पता है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ना, अननेसेसरी इसमें कोई पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना। ईच ऑफ दीज वेजल्स ए बी सी कंटेन्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, ये भी मेरे स्लॉट पे था आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर ये क्वेश्चन मैंने किया था नहीं, 19 slot 2, I don't remember. Each of 3 vessels A, B, C contains 500 ml of salt, strength 10%। तो अगर 10% है तो इसमें तो तुम्हारा सॉल्ट कितना होगा 10%, 50 एंड 450 ये रेशियो रहा होगा। 22% 500 सारे हैं तो 22 110, तो बचा हुआ कितना 390 है ना, 390 500 32 तुम्हारा 150 160 एंड 340। So these are the ratios of salt and water. 100 ml of the solution vessel A is transferred to this 100 ml। इसके 100 ml अगर ट्रांसफर करोगे, चलो देखो तो पूछ क्या रहा है, देन 100 ml ऑफ इसके देन मतलब ये प्रोसेस रिपीट किया जा रहा है। स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तुम्हें, तो अगर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो इंस्टेड ऑफ लाइक दोनों को अगर लाइक ऐसे देखो कर सकते हैं वैसे। अब यहाँ से कितना आएगा, लाइक जस्ट अगर हम एक पे ही कंसंट्रेट करें है ना, जस्ट इस पे कंसिडर करें, जस्ट इस जो आसान कैलकुलेशन रहेगा, तो लाइक यहाँ से 50 है। अब इसमें से कितना 100 ml जाएगा, तो 500 से 100 ml जाएगा, 500 से 100 ml तो 15 जाएगा, तो 15 कितना यहाँ से 10 आएगा, 10 आएगा तो यहाँ से 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर 500 था और ये 100 कितना 60, अब 600 हो गया है ना, अब 600 है ना, तो इसका 16 जाएगा, इसका 100 ml इसका कितना होगा 16 होगा, तो 16 जाएगा तो डेट इज 12, सही कर रहा हूँ ना मैं, 12 जाएगा 160, 100 ml जाएगा नहीं एक मिनट वैसे नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक इसको लिख के पूरा ऐसे और एक एक, तो थोड़ा वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, आई थिंक थोड़ा ही डिफरेंस आएगा, बट यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा आंसर कुछ गलत नहीं है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये 120 हो गया, 120 आउट ऑफ 600 है और हमें निकालना है इतना 100, तो 20, तो यहाँ से कितना आएगा 20 आएगा। ये जस्ट मैंने रेशियो का फ्रैक्शन का यूज़ करके निकाल लिया, तो यहाँ पर ये 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 600 है, 600 में 180 है, हमें 100 में चाहिए, तो 16 3 तो 30 ml यहाँ पर आ जाएगा। तो 40 पहले 40 बचा हुआ था ना जब वो चला गया था, तो 40 और 30 इधर आएगा तो दैट इज 70 आउट ऑफ फिर से 500 हो गया, तो कितना परसेंट हो गया 14% इज द राइट आंसर। आई डोंट रिमेंबर ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में किया था नहीं,
आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर जस्ट ये चीज़ फ्रैक्शन के टर्म में करके सॉल्व कर लिया, अदरवाइज तुम नॉर्मल लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो, दैट विल बी बस टाइम टेकिंग, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज जो रेशियो होगा वो मेंटेन ही रहेगा, तो रेशियो के टर्म में मैंने सॉल्व कर दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। An alloy is prepared by mixing metals A, B, C in the proportion 3, 4, 7 by volume. So by volume. Okay, ये कैट 2020 स्लॉट वन मैंने दिया था, आई थिंक स्लॉट वन 2020 में, हाँ 2020 स्लॉट वन ही दिया था, स्लॉट वन। सो ए बी सी इन द प्रोपोर्शन 3, 4, 7, 3, 4, 7, weight of the same volume of metal ABC in the ratio 5 to 6। ये तो जस्ट ऐसे था, लाइक इनका मल्टीप्लिकेशन 42 एंड 8 एंड 15, तो ये इनका वेट का रेशियो होगा। बेसिकली देखो दिया क्या हुआ है, बाय वॉल्यूम ये प्रोपोर्शन है, और ये दिया है कि लाइक सेम वॉल्यूम का, लाइक लेट से 100 ml का, लेट से 1 ml का, लेट से 1 लीटर 1 ml, 1 लीटर या 1 ml का 5 kg है, और 1 लीटर का इसका 2 kg, इसका 6 kg, तो इसके 3 लीटर्स का वॉल्यूम कितना 15, वेट कितना हो जाएगा इतना, इसके 4 लीटर का वेट इतना, और इसके 7 का वेट इतना। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ द वेट्स, ये तीनों के वेट का रेशियो दिया हुआ है इन 130 kg ऑफ द एलॉय वेट ऑफ द मेटल सी। सो दिस वाज सुपर इजी क्वेश्चन। सी का तुम्हें निकालना है 42/50 65 इंटू 130, दैट इज 84 इज द राइट आंसर। सुपर इजी क्वेश्चन। Two alcohol solution A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. The volume of the mixture is then doubled by adding solution A such that the resultant mixture is 72% alcohol. If the A has 62%, then the percentage of alcohol in the solution B. Okay, A and B are mixed in proportion 1:3. A और B को 1:3 में मिक्स किया गया है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज देन डबल्ड, इस मिक्सचर का वॉल्यूम, तो लाइक अगर ये x और 3x है, ये 4x है, तो इसका देन डबल कर दिया गया है एडिंग सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पर ये तुम्हारा ए बी है ना, ये तुम्हारा दिस इज ए बी, और इसमें तुम्हारा ऐड किया जा रहा है दैट इज 4x ऐड किया जा रहा है ए प्लस बी में, एंड इसके पास था 72% है। इफ द सॉल्यूशन ए हैज 60% अल्कोहल। ओके, यू कैन सी दिस इज द रिपीटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो मैं 18 में बात करता ना स्लॉट 2 में, देखो सेम है, सेम रिपीटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाला। यहाँ पर देखो क्या था, ये दो थे, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लो इसको, है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये था सॉल्यूशन तुम्हारा, और यहाँ पर क्या था कि ये रेशियो दिया हुआ था कि इस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं 1:3 या कुछ रेशियो दिया हुआ था ना, ये कुछ दिया हुआ था, और वहां पर बोल रहे हैं कि इसको जस्ट डबल कर रहे हैं, इसको जस्ट डबल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी डबल ही कर रहे थे, यहाँ पर जितना था और उतना ही इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो 4x है, तो यहाँ पर इथेनॉल 5 आ गया, तो सेम चीज सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है 18 स्लॉट 2, और ये देखो 20 स्लॉट 3 है ना, ये 20 स्लॉट 3। यहाँ पर देखो ये 1:3 है, तो 4x आ गया, और ये फिर से 4x मिक्स, ये फिर से मिक्स कर दिया, सेम क्वेश्चन है ना। और ए का तुम्हें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 60%, वहां पर भी ये दिया होता ना 20%, और ये 60% दिया हुआ है, सेम है, इज द सेम क्वेश्चन। अब ये देखो क्या आ जाएगा 7, अगर ये 12 है तो यहाँ पर आ जाएगा 84, दिस विल बी 84 ए प्लस बी, अगर ये 84 है, ये 60 है, तो सॉल्व हो गया। ये 14 अगर आ रहा है तुम्हारा, सही है ना, 18, ये 1:1 आ रहा है, बिकॉज इफ द अल्कोहल देन द परसेंटेज ऑफ इन द सॉल्यूशन बी, ये तुम्हें निकालना है। सो 84 ऐसे कर लो, 84 इक्वल्स टू 4 एंड 60 प्लस, इसको ले लेते हैं बी, 3b, so that is 84 into 4, that is 320 and 336 minus 60 by 3b, तो ऐसे कर लूँ मैं 11 to 20 सेपरेट कर दो 292। अगेन सी दिस इज द रिपीट क्वेश्चन, कैट 20
18 स्लॉट 2 में क्वेश्चन आया था। अगेन दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन कैट 20 स्लॉट 3। अगर तुमने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो ये आसानी से कर पाते। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन द परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंडिगो इन द ग्राम्स पर। तो ये अगेन डेफिनेशन दी हुई है सॉल्यूशन की, जो अभी तक से लास्ट 3 ईयर में दी हुई है ना। 19 में भी थी आई थिंक, 20 में भी थी, 19 और 20 में थी, और ये तीसरा साल है। 800 cc bottles are filled with indigo solution strength 33 and 17। तो 800 की सीसी है ये, बेसिकली लाइक वॉल्यूम का तो क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो स्ट्रेंथ है 33 और 17, दोनों में 800 है रिस्पेक्टिवली। अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बोतल, तो फर्स्ट बोतल से कुछ हटा दिया जाता है एंड रिप्लेस बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बोतल। ओके, if the strength of the indigo solution the first bottle has now changed to 21, then the volume, तो तुम्हें वॉल्यूम निकालना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइक 800 ml थे, कुछ हटा दिया गया। अब तो 800 और उधर से x इसका जोड़ दिया गया, है ना। तो तुम्हें बताना है कि देन द कि बेसिकली लाइक 800 माइनस x तुम्हें निकालना है कि उस बॉटल में कितना बचेगा ना सेकंड बॉटल में। तो 800 माइनस x इसके और x इसके इस रेशियो में मिक्स किए जाते हैं एंड यू आर गेटिंग 21। नाउ चेंज टू 21 आ जा रहा है। सो नाउ चेक इट, ये कितना आ जाएगा। ये समझ में वो क्या रहा है कि लाइक 33% वाला कंसंट्रेशन और 17% वाला कंसंट्रेशन मिक्स किया जा रहा है। वॉल्यूम ये रेशियो हमें नहीं पता अभी, और ये आ इतना रहा है फाइनल। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 12, 5:12, 5:12। और अब देखो ये कितना है, ये कितना है, इसमें से कितना था 800 माइनस x चला गया था और b का x लाया गया था ना, b का x, b की बात हो रही है, b का सेकेंड बॉटल से लाया गया था x। सो ये रेशियो है तुम्हारा, तो लाइक दिस इज 5x इक्वल्स टू, आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ गलत, मुझे गलत लग रहा है 17, हाँ ये गलत है। एक मिनट, 5:12 नहीं 4 है, दिस इज 4, यही गलत है, 17 4। सो 1:3, 1:3, 1:3। क्यों मैंने उस टाइम गलत बोल दिया था, बिकॉज इंटीजर नहीं आ रहा था, वो 17 और 96 मल्टीपल नहीं है ना, 17 96 17 का। दिस इज नो x एंड 2400 एंड माइनस 3x दैट इज 4x, x इक्वल टू 2400, x इक्वल टू 600। x का वैल्यू आ गया 600। हमें निकालना है क्या, if the strength of the indigo solution in the first bottle was now has changed, then the second bottle में कितना कंटेंट बचा होगा। तो क्या हुआ था, 800 दोनों में था, इसको कुछ निकाल के फेंक दिया, डेट इज 600। अब 600 उसका फिल कर दिया गया, तो इस बॉटल में कितना 200 बचेगा। यू नीड टू टाइप 200 इन द आंसर। ओके, फ्रॉम अ कंटेनर filled with milk 9 liter of milk are drawn and replaced with water। 9 liter of milk are drawn and replaced with water, तो 100% मिल्क है। एक मिनट, ये टीटा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम देन द कैपेसिटी करना, ठीक है। 9 liter are drawn and replaced, next from the same container 9 liter are drawn and again replaced with water। तो वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मतलब मिक्स, यहाँ पर हम मिल्क लेंगे, इसका वॉल्यूम नहीं पता, और ये प्रोसेस ट्वाइस होता है, ये प्रोसेस ट्वाइस होता है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर आर नाउ इन द रेशियो, तो रेशियो दिया है तो उसको परसेंटेज की जगह रेशियो में लेते हैं। अभी मिल्क कितना है, पूरा है ना, कंप्लीट मिल्क 100% मिल्क है, तो 1:1 आएगा मिल्क का, मिल्क पूरा है ना, तो 100% मिल्क आएगा। 0 वाटर है, 1 + 1 आ जाएगा। दिस इज 16, मिल्क का करेंगे तो 25, तो इसको रूट इधर करोगे। तो ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। 4x इक्वल्स टू 5x माइनस x इक्वल टू 40। हमें बताना क्या, x की वैल्यू बताना था, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, दैट इज 45, नीड टू टाइप 40। इसी क्वेश्चन स्टैंडर्ड, ऐसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए होंगे। इफ अ सर्टेन वेट ऑफ एन एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्सड विद 3 kg ऑफ
प्योर सिल्वर। तो सिल्वर और कॉपर का एलॉय है एंड इज मिक्सड विथ 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर। तो ये है, अब हमें ये पता नहीं कितना है, क्या रेशियो है, बट इसमें मैंने 3 kg प्योर सिल्वर मिक्स कर दिया। द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट। तो इसमें 90% ये जो बनेगा इसमें 90% सिल्वर हो जाएगा। ओके, इफ द सेम वेट ऑफ इनिशियल अलॉय का जो था मिक्सड विथ 2 kg ऑफ अनदर अलॉय which has 90% silver by weight, the resulting alloy will have 84%। again this is repeating। जो 18 तुम्हारा स्लॉट 2 में था, 20 में स्लॉट आई थिंक 1 और 2 जो भी था, अगेन दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो 90% एक बार ऐड कर रहे हो, फिर से 90% ऐड कर रहे हो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। If the same weight of the initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy which is 90% by weight, the resulting, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 100% है ना, प्योर सिल्वर मिक्स करें ना 100%, दिस इज 3 kg एंड इसका रिजल्ट 90% आ जाएगा। दिस वी डोंट नो एंड दिस वी डोंट नो, ये चीज़ें नहीं पता हमें। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय, वेट तो हमें पता नहीं इनिशियल अलॉय इतना था, इज मिक्सड विथ 2 kg ऑफ अनदर अलॉय विच इज 90% सिल्वर। अब 90% सिल्वर के साथ मिक्स करोगे तो रिजल्ट आएगा 84, और हमें एक्स ये नहीं पता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, बट मोर और लेस ना सेम लाइन है। अगर वो तुमने पहले सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा। तो अब इसको जस्ट 2 इक्वेशन टू अननोन बना लें इसको, 90 एंड 3 + y, 90 3 + y equals to xy and 300। आई होप दिस इज फाइन, कैलकुलेशन सही होगी मेरी। सो दिस इज यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बना लें, 84y + 2 equals to xy plus 180। now this is 270 plus 90y xy plus 300, दोनों में xy है और y, तो दो अननोन यहाँ पर है, एक xy को सिर्फ x ले लो और y। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, भाई सब्ट्रैक्ट दिस टू, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या करना है। एक्स वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँ, 120 ऐड कर दूँ और 120 इधर और जस्ट पुट इट हियर। 120 मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया है, 120। जस्ट मैं कैलकुलेशन को आसान बना रहा हूँ, नथिंग एल्स। ये कितना 168 प्लस 120 किया मैंने, सो दिस इज 270 प्लस 90y। नाउ दिस इज 6y एंड दिस इज minus 270। so add all this and कितना ये 168 8 8 288 minus 70 that is 18, y equals to 3। तो y3 आ गया, what it is asking। then the weight of initial alloy का वेट पूछ रहा है, तो y3 आ गया तुम्हारा, y is 3। initial alloy क्या था, certain y क्या था तुम्हारा, y was this thing ना, y was this thing, this is right, y was this thing 3 kg। ये इनिशियल अलॉय था ना, इनिशियल अलॉय ये था, यहाँ पर सिल्वर और कॉपर है और इसका वेट 3 था, so that is this the right answer। so these were your these questions from alligation and mixture। you can see like questions were repetitive in different, like you can say if you solve this question that will be helpful, and definitely there will be few questions that will be repeating again next year। so make sure you solve these questions properly and understand the approach, and also find out if there is a better way to solve this question, and I have given these best method that are there। so definitely like see, watching these solutions will be helpful for you। so make sure watch these complete solution, and these are the 2 extra question, these maybe these type question comes this year in the exam, so I am taking these bonus question that you have to solve this question and let me know answer in the comment section। so that's it for today। make sure you join these telegram channel and all these things।